Hi everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are starting a very important series which is the UPSC CSE CDS exam answer key series. We recently the CDS exam was conducted by UPSC and geoscientist exam was also conducted by UPSC. These kind of exams before your actual CSE exam which are conducted, the question papers are very important and most of us we miss this trick adopted by UPSC. Questions are often reshuffled and rotated from all these papers which are conducted before the actual CSE वाला exam. ओके तो जो आपका सीएससी का एग्जाम होता है उससे पहले जितने भी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसके क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए फॉर ऑल ऑफ यू वी आर ब्रिंगिंग अप द आंसर कीज ऑफ द यूपीएससी सीएससी रिसेंटली सीडीएस 2023 का प्री जो कंडक्ट हुआ है. यू कैन नॉट इग्नोर दिस एट एनी कॉस्ट. यू नेवर नो क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द ज्योग्राफी पोर्शन. आज हम ज्योग्राफी पोर्शन से डील करेंगे इन द सीडीएस एग्जाम. देन वी विल डील विद इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एटसेट्रा. Today we are going to focus on the questions from geography in the CDS exam, the latest CDS exam. Also I have started a new batch on geography, rapid revision batch of 5 days which is starting from tonight. आज 10 से 11 बजे रात को क्लास होगी on Unacademy. If you want to enroll, it would be a 1 hour class, 5 days, 5 घंटे में we are going to revise geography rapidly including the current affairs and PYQs. Okay, so if you want to enroll, the description box, in the description box below the video the link is there, you can click on it and enroll. Okay, तो आज से ही क्लास स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी की. अगर आपको फटाफट 2023 के लिए रैपिडली रिवाइज करना है ज्योग्राफी तो आप एनरोल कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस. दिस वुड बी अ मॉक टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. आपके लिए एक समझ लो मॉक टेस्ट है. ठीक है. Question is, consider the following clues about state of India. It is known as land of Red River and Blue Hills, contains 3 of the 6 physiographic divisions of India. It covers about 2.39% of total areas of the country. Identify the state. देखो very tricky question. The second and three statements which are given, they are tricky. Okay, but the first statement clearly is telling you which the name of the state. देखो, if you have a slight inclination towards cultural aspect of India, spirituality, you would know the answer. There is a very famous Shakti Peetha, right, which is the Kamakhya Shakti Peetha, Kamrup Kamakhya Shakti Peetha. It is said that the deity which is there, the goddess who is residing there is Ma Kamakhya. Okay, and it is there is a very famous hymn for Ma Kamakhya, Kamakhyaye Varde Devi Neel Parvat Vasini त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते. नील पर्वत वासिनी, नीले पहाड़ों में रहने वाली कामाख्या माँ, आप जगत माता हो, आपको प्रणाम. Blue Hills, land of Red River. There is an Ambubachi Mela which is celebrated for Kamakhya Ma when she is menstruating. It is said the doors of the temples are closed. It is said when she menstruates for 3 days, the river which is flowing near the temple, it turns red. Land of Red River which is river Brahmaputra. Correct answer is Assam. Correct answer आप देखोगे इसका हो जाएगा आपका आसाम. ठीक है. Similarly, coming on to the next question, which of the following sets of states shares boundary with Telangana? This is again a question which can be highly asked. आपको लगता है अरे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी? नहीं, छोटे छोटे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लेगा. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. तो यहाँ पर आप देखोगे कि तेलंगाना के साथ कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं. ठीक है, हमें पता है महाराष्ट्र तो है ही है. वी नो कि महाराष्ट्र इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद तेलंगाना. महाराष्ट्र इज नॉट प्रेजेंट इन ऑप्शन बी and Maharashtra is not present in option C. So elimination method you can use to eliminate these two options. Okay. Now it is said कि तेलंगाना it shares border with ओडिशा. थोड़ा सा कुछ साइड साउथ में ओडिशा से भी शेयर करता है तेलंगाना. ठीक है, बट देन वी नो कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र तो रहते ही रहते हैं. बट यहाँ पर आप देखोगे इस जगह छत्तीसगढ़ नहीं लिखा हुआ कहीं भी. In option A, Chhattisgarh is not written. In the map, you can see Chhattisgarh is sharing major border over here. Okay, but here Chhattisgarh is not present. Elimination method use करके A will be eliminated. Correct answer D. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है. तेलंगाना is surrounded with छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड थोड़ा सा स्लाइट बॉर्डर ओडिशा के साथ है. बट ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़ नहीं था, सो वील एलिमिनेट दैट. ओके, अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया था इट इज़ वेरी फेमस. असम इज फेमस फॉर टू बी नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स.
Coming on to the next question, which two rivers flow in the region between Gulbarg and Vijayanagar Hampi? गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी के बीच में कौन सी दो रिवर्स फ्लो करती हैं? तो लेट अस हैव अ लुक एट द मैप देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, ये देखोगे आप, ये गुलबर्ग रीजन हो गया बहामनी किंगडम का, मिडिवल इंडिया का मैप है। विजयनगर किंगडम का हम्पी रीजन हो गया बाउंड्री पे बिल्कुल, और इसके बीच की रिवर्स निकालनी है। तो बीच में कौन सी रिवर्स आ रही हैं? लुक शिफ्ट योर फोकस ओवर हियर। वी हैव द मेजर तुंगभद्रा रिवर एंड वी हैव हियर द कृष्णा रिवर। ये देख रहे हो आप, कृष्णा रिवर है मेजर हमारी, तुंगभद्रा रिवर है। और भी रिवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वेनगंगा, पंचगंगा, दीज रिवर्स आर ऑल्सो देयर। बट लेट अस हैव अ लुक एट दी ऑप्शन। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे कृष्णा एंड तुंगभद्रा है, वेनगंगा पेनगंगा कहीं पर भी नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी रिसेंटली आई कंडक्टेड दिस आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्लास in which we studied about the very famous important dynasty जिन्होंने एक अपना बरियल का पिरामिड तैयार किया हुआ है नागालैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 35 को आप देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम? आसाम की एथनिक कम्युनिटी इसमें से कौन सी है? इट इज़ अहोम, बिकॉज अहोम डायनेस्टी बिल्कुल इनिशियल डायनेस्टी है विच स्टैब्लिश्ड आसाम, राइट? सो सी वुड बी द आंसर। हियर यू वुड सी आदिवासीज कंप्राइजिंग 106 सब ग्रुप्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द 6 कम्युनिटीज डिमांडिंग ST स्टेटस, जिसमें से अहोम भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 बेसिकली एक आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन था। एंड 2021 से हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स में से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है, कभी कभी नहीं भी आएगा, इट्स काइंड ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज द चेवरॉन्स इज द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज जिम्बाब्वे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये 2 नंबर जो मिसलेनियस से आते हैं ना, अगर आपको आइडिया है आप मार्क कर सकते हो, नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट। Coming on to the next very famous question, cheetahs brought from Namibia were introduced in India to which one of the following national parks? बहुत ही famous, बहुत ही easy question है। We know it is Kuno National Park. चीताज जो है नामीबिया से यहाँ ट्रांसलोकेट किए गए हैं और वो कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। नाउ हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर इज कि व्हाट एग्जैक्टली वेयर एग्जैक्टली इज कूनो नेशनल पार्क, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ आता है, जल्दी से बताओ। वेयर डू वी हैव द कूनो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इट इज़ इन मध्य प्रदेश। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1981। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेट, नेशनल पार्क्स के स्टेट्स आपको याद रखने हैं। Question number 55. Vicky told his friends about his visit to Stewart Island, Bay of Plenty, Hawke Bay. Which country did Vicky visit? देखो, इसमें Stewart Island is very famous. Bay of Plenty, Hawke Bay are not that well known, but Stewart Island is almost every time in news in world affairs. करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पर आप देखोगे करेक्ट आंसर सी है। ये है न्यूजीलैंड का मैप, यहाँ आप देखोगे इट इज़ स्टीवर्ट आइलैंड ओवर हियर। हॉकी बे आपका थोड़ा सा साइड में आपको दिखेगा यहाँ इस तरफ, और ऊपर आपको बे ऑफ प्लेंटी दिखेगा, बट स्टीवर्ट आइलैंड हैज बिकॉज द मेजर आइलैंड इट इज़ इन न्यूज़। ठीक है, एंड ऑन द नेम ऑफ स्टीवर्ट आइलैंड देयर इज अ वेरी फेमस क्रिकेटर ऑल्सो, ही हैज़ ऑल्सो टेकन द सेम नेम। ओके, coming on to the next very easy question, with what will be the correct sequence of cities of the banks of river Ganga? आप देखो, आप क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग देखो। whatever major rivers you are going to study, don't study in which state they are following. yes, you have to study that, वो तो पता होना चाहिए, but remember which cities or states it is passing, north south and west east direction, ये आपको याद रखना है। तो इधर गंगा सिटीज़ की बात कर रही है कि वेस्ट से ईस्ट किन किन सिटीज़ को बीच में होते हुए गुजरती है गंगा। करेक्ट आंसर है डी। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखोगे दीज आर द सिटीज़ बेस्ड ऑन रिवर गंगा। वेस्ट से ईस्ट अगर आप देखोगे यहाँ मैप में कानपुर आ गया, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। कानपुर, भागलपुर, प्रयागराज एंड पटना, वाराणसी। तो ये आपका वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड। हियर यू कैन सी छत्तीसगढ़। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में सबसे लंबा एक्सटेंशन किस स्टेट का है? वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हियर वुड बी छत्तीसगढ़। ऑल राइट, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे यूपीएससी प्रिफर्स NCERTs ओनली। यूपीएससी और कुछ प्रिफर नहीं करता है, NCERT प्रिफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉल्केनोज आर करेक्ट? वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियरली आपको ध्यान से देखना है। देखो, हमें पता है जब वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है, वो जब स्प्यू आउट करते हैं वॉल्केनिक लावा, तो आपको पता है ऐश क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, रेनफॉल होती है। अब यहाँ पर ये जो ऐश क्लाउड्स और ये जो ऐश वेदरी रीजन होता है, ये जो मिट्टी में जाके मिलता है,
ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो सॉइल है वॉल्केनो के आसपास, ये उसको बहुत फर्टाइल बना देता है, बिकॉज हमने देखा है यहाँ पर कि मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे डिपॉजिट्स निकलते हैं वॉल्केनिक लावा और ऐश से, जो सॉइल की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कि वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल, दैट इज करेक्ट। ओके, इफ थर्ड इज करेक्ट यू कैन एलिमिनेट ए ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखो, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, करेक्ट। एक्सप्लोसिव इंडेक्स से एक्सप्लोजन का एक्सटेंट और स्ट्रेंथ वॉल्केनो की पता चलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बी आप निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है। आपका फर्स्ट भी ठीक है, अभी 3 भी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, आइसलैंड और फिलिपाइंस आर क्रिएटेड बाय द ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करके ही निकाल दिए यहाँ से, ठीक है, वो भी कॉमन सेंस यूज करके। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल टाइप, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखोगे सीडीएस में इस बार एनसीईआरटी यूज की गई है, तो यू कैन बी अवेयर, यू हैव स्टिल 20 days, प्लीज टेक आउट योर एनसीईआरटीज एंड रिवाइज फ्रॉम देम एज मच एज पॉसिबल। यूपीएससी इज टारगेटिंग एनसीईआरटी दिस टाइम। Consider the following characteristics of a soil type. These soils consist of various proportion of sand, silt and clay. These soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. Can be further classified on the basis of their age. देखो हमको पता है जो एलुवियल सॉइल होता है उसको जियोमॉर्फिकली यंगेस्ट सॉइल माना जाता है, ठीक है। एंड प्लस ये क्लेई फॉर्म में होता है, इट इज़ नॉट इन सॉलिड फॉर्म, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से और थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से वी गॉट आवर आंसर एज ए। यहाँ पर हमें अपना आंसर मिल गया ए। जियोलॉजिकली यंग होते हैं, सॉलिड रॉक में कंसोलिडेट नहीं हो पाते, प्लस रनिंग वाटर जो होता है ना वो फ्लड प्लेन में आके इस सॉइल को डिपॉजिट कर देता है। तो बेसिकली इसके अंदर लाइम, फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी हाई मात्रा में पाया जाता है, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये आपका ज्योग्राफी का था। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए थे। एक ये क्वेश्चन हो गया, फिर 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स, अपने प्रीलिम्स की बात करो तो 11 क्वेश्चन, मतलब आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है 2 नंबर का। 11 क्वेश्चन है, 22 मार्क्स आपके ज्योग्राफी से आने की संभावना है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन आंसर्स को भी आपको रिवाइज करना है और इसके ऑप्शंस को भी रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज दी ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो।